کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال پوچھا ہے کہ انسان خدا سے ڈرنا چھوڑ کر انسانوں کو ڈرانا کب شروع کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام انسان کس لمحے خود کو سب سے بالا سمجھنے لگتا ہے؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب طاقت سے خدا نکل جاتا ہے تو وہ حفاظت نہیں بلکہ تباہی بن جاتی ہے؟ اس کہانی کو سننے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کسی اور کی داستان نہیں، یہ آپ کی اپنی داستان ہے۔ یہ چینل آپ کا ہے کیونکہ آپ بنی آدم ہیں، اور یہ سفر وہی سفر ہے جو آپ کے باپ آدم سے شروع ہوا اور آپ تک پہنچا۔ آسمانی کتابیں انسان کو ابتدا ہی میں خبردار کر دیتی ہیں۔ انجیل ان بادشاہوں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے خدا کی اطاعت چھوڑ دی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ وہ حکمران جو اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور رحم ان کے دلوں سے نکل گیا۔ تورات واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ خدا کے قانون سے اوپر اٹھتا ہے تو وہ اپنی قوم کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ قیادت اگر عاجزی چھوڑ دے تو وہ خدمت نہیں رہتی بلکہ ظلم بن جاتی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ظلم اسی لمحے پیدا ہوتا ہے جب انسان خود کو بندہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ فرعون کا ذکر کرتا ہے، اس کے دعویٰ خدائی کا، اس کی سرکشی کا، اور اس کے انجام کا۔ تینوں کتابیں ایک ہی حقیقت بیان کرتی ہیں۔ خدا کے بغیر طاقت انسان کو کھا جاتی ہے۔ آدم کے بعد ابتدائی زمانے میں بنی آدم کی زندگی سادہ تھی۔ قبیلے تھے، بزرگ تھے، رہنمائی تھی، لیکن کوئی تخت نہیں تھا، کوئی تاج نہیں تھا۔ طاقت کا مطلب حفاظت تھا، حکم نہیں۔ لوگ رہنماؤں کی بات اس لیے سنتے تھے کیونکہ وہ ان پر بھروسہ کرتے تھے، ڈر کی وجہ سے نہیں۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بنی آدم کی تعداد بڑھی، زمین پر بوجھ بڑھا، پانی کم ہوا، خوراک کم ہوئی، اور خوف پیدا ہوا۔ اور خوف وہ دروازہ ہے جس سے ظلم داخل ہوتا ہے۔ لوگ پانی کے لیے لڑنے لگے، زمین کے لیے جھگڑنے لگے، راستوں پر قبضہ ہونے لگا۔ جو طاقتور تھے وہ محافظ بنے، محافظ سردار بنے، اور سرداروں نے حکم دینا شروع کیا۔ شروع میں یہ سب ٹھیک لگتا تھا، کیونکہ دشمن دور تھے، زندگی محفوظ لگتی تھی۔ لوگ کہتے تھے، یہ ہمیں بچاتا ہے، یہ ہمیں دشمن سے بچاتا ہے۔ مگر طاقت خاموشی سے دل میں سرگوشی کرتی ہے۔ میں کیوں جھکوں جب سب میرے سامنے جھکتے ہیں؟ میں خدا کی کیوں سنوں جب لوگ میری سنتے ہیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب خدا کے بغیر بادشاہت پیدا ہوئی۔ پہلے ظالم بادشاہ تاج نہیں پہنتے تھے، وہ خوف پہنتے تھے، وہ اطاعت پر حکومت کرتے تھے۔ لوگوں نے خدا سے سوال کرنا چھوڑ دیا، اور حاکم سے اجازت مانگنے لگے۔ یہی ظلم کی اصل پیدائش تھی۔ دریاؤں کے درمیان کی سرزمین میں شہر بنے، سومر، اکد، بابل۔ بادشاہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں آسمان کی تائید حاصل ہے، مگر ان کے قوانین کمزوروں کے لیے نہیں تھے۔ انصاف طاقت کے تابع ہو گیا، سزا تماشا بن گئی، اور خوف نظام بن گیا۔ نام پتھروں پر کندہ کیے گئے، خدا کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے۔ مندر بنے، مگر محل ان سے اونچے تھے۔ مصر میں تو معاملہ اور بھی آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ صرف حاکم نہیں رہا، وہ معبود بن گیا۔ فرعون کو زندہ خدا کہا گیا، اس کے حکم کو عبادت سمجھا گیا۔ جب انسان خود کو خدا سمجھ لے، رحم مر جاتا ہے۔ لوگ بھائی نہیں رہے، وہ مزدور بن گئے۔ بچے زنجیروں میں پیدا ہونے لگے، خاندان ٹوٹنے لگے، زندگیاں اوزار بن گئیں۔ عظیم عمارتیں کھڑی ہوئیں، لیکن ان کے نیچے نسلیں دفن تھیں، اور ظالم مسکراتا رہا۔ یہ صرف مصر کی کہانی نہیں تھی، اسی دور میں دنیا کے مختلف حصوں میں یہی عمل چل رہا تھا۔
वादी सिंध में शहर मुनज़्ज़म थे, लेकिन इख्तियार चंद हाथों में था। सवाल खामोश थे। चैन में हुक्मरान आसमानी हक का दावा करते थे। जब कहत आता तो अवाम को कसूरवार ठहराया जाता। अफ्रीका में कबायली सरदार मुतलक बादशाह बन गए। कौमें जज्ब हो गईं, शनाख्त मिट गई। हर जगह एक ही कहानी लिखी जा रही थी। ताकत खुदा से अलग हो चुकी थी, और बनी आदम इस कीमत को अदा कर रहे थे। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये इंसान की नफ्सियात है। ताकत जब खुदा के बगैर होती है, वो पहले इख्तियार मांगती है, फिर इताअत, फिर इबादत, और आखिर में रूह छीन लेती है। यहाँ से जुल्म एक फर्द नहीं रहता, वो निज़ाम बन जाता है। यहाँ से जुल्म सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, ये एक मुकम्मल निज़ाम बन जाता है। जब ताकत को खुदा की याद से अलग कर दिया जाता है, तो वो खुद को महफूज रखने के लिए दीवारें नहीं बनाती, वो ज़हन बनाती है। जालिम बादशाह ने जल्द ये बात समझ ली। जब तक लोग खुदा को याद रखते हैं, वो मुकम्मल गुलाम नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले याददाश्त पर हमला किया गया। पुराने किस्से मिटाए गए, बुजुर्गों की बातें रोकी गईं, सच को बदल दिया गया। नई नस्ल को ये सिखाया गया कि बादशाह हमेशा से ऐसा ही था, कि यही फितरत है, कि यही तकदीर है। खुदा का जिक्र बाकी रहा, लेकिन खुदा की हाकिमियत ख़त्म कर दी गई। दरियाओं के दरमियान सल्तनतों में बादशाहों ने कहा, हमें आसमान ने चुना है, हमें सितारों ने हुक्म दिया है, और जो हमारी मुखालफत करे, वो खुदा का दुश्मन है। यूं जुल्म को इबादत का लिबास पहना दिया गया। मुबिद बादशाह के करीब कर दिए गए, लेकिन खुदा को पीछे छोड़ दिया गया। लोग इबादत करते थे, मगर दिल खाली थे। मिस्र में फ़रून की तस्वीरें हर दीवार पर थीं। बच्चे इसका नाम पहले सीखते थे, दुआएं बाद में। फ़रून को मरने वाला नहीं समझा जाता था, क्योंकि मौत इसके दावा खुदाई को तोड़ देती थी। इसलिए मौत को छुपाया गया, लाशों को खामोशी से दफन किया गया। चैन में हुक्मरान आसमानी हक का दावा करते थे। जब सैलाब आता, जब कहत आता, तो अवाम को कसूरवार ठहराया जाता। लोग भूखे मरते, और बादशाह मजीद ताकतवर हो जाता। वादी सिंध में शहर तरतीब से बने थे, गलियां सीधी थीं, मकान मुनज़्ज़म थे, लेकिन इख्तियार दूर कहीं बंद कमरों में था, जहां सवाल दाखिल नहीं हो सकते थे। अफ्रीका में ताकत कबाइल से निकली, लेकिन जल्द ही एक हाथ में जुमा हो गई। कबाइली सरदार बादशाह बन गए, और भाई भाई नहीं रहे। हर जगह एक ही सबक सिखाया गया, खामोशी जिंदा रखती है, सच मार देता है। जुल्म ने अपने मुहाफिज बना लिए, फौज, अदालत, कानून, लेकिन ये सब इंसाफ के लिए नहीं थे, ये तख्त के लिए थे। नस्लें ऐसी पैदा हुईं, जिन्होंने आज़ादी देखी ही नहीं थी। बच्चे सीखते थे कि सवाल बदतमीजी है, कि इताअत ही इखलाक है। आहिस्ता आहिस्ता बनी आदम ने जुल्म को मामूल समझ लिया। यही जुल्म की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, जब मजलूम खुद जुल्म का दिफा करने लगे। लोग कहते थे, कम अज़ कम अमन है, कम अज़ कम नज़म है। वो ये भूल गए थे कि ये अमन कब्रिस्तान का अमन है। जालिम बादशाह अंदर से बदल चुका था। वो हर वक्त खौफ में रहता था, उसे हर शख्स दुश्मन लगता था। वो ज़्यादा सज़ाएं देता, ज़्यादा कत्ल करता, ज़्यादा निगरानी करता। ताकत बग़ैर खुदा के कभी मुतमईन नहीं होती, इसे हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है, और जितना ज़्यादा वो लेती है, इतनी ही खाली हो जाती है। बादशाह तन्हा हो गया, महल्लात में, मुहाफिजों के दरमियान। वो जानता था कि अगर लोग डरना छोड़ दें, तो वो कुछ नहीं है। उसी लिए वो सबसे ज़्यादा डरता था, इन लोगों से,
जो खुदा को याद दिलाते थे। अनबिया, सालेह लोग, सच बोलने वाले, ये लोग बगैर हथियार के तख्त हिला देते थे, क्योंकि वो बनी आदम को याद दिलाते थे कि असल हाकिम कौन है। तलवार जिस्म को मारती है, लेकिन सच रूह को जगाता है, और जागती हुई रूह गुलाम नहीं रहती। उसी लिए जालिम बादशाहों ने पैगाम लाने वालों को कैद किया, कत्ल किया, बदनाम किया, लेकिन पैगाम ख़त्म ना हुआ, क्योंकि खुदा का कलाम मटाया नहीं जा सकता। हर जुल्म के दूर में कहीं ना कहीं किसी माँ ने बच्चे को दुआ सिखाई, किसी बुजुर्ग ने कहानी सुनाई। यही छोटे बीज थे जो पत्थर तोड़ने वाले थे। यह जुल्म अपनी इंतहा की तरफ बढ़ रहा था। ताकत खुद को हमेशा के लिए समझने लगी थी, और यही वो मकाम है जहां अंजाम करीब आता है। जुल्म का आखिरी मरहला वो होता है जब ताकत खुद को हमेशा के लिए समझने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब जालिम बादशाह ये मान लेता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, ना इंसान, ना वक्त, ना खुदा। उसी मरहले पर तारीख हमेशा पलटती है। जालिम बादशाहों के शहर उस वक्त सबसे ज़्यादा शानदार नज़र आते हैं। महल्लात ऊंचे होते हैं, फौज मजबूत होती है, खजाने भरे होते हैं, लेकिन रूह अंदर से मर चुकी होती है। लोग काम तो करते हैं, मगर उम्मीद नहीं रखते। वो जिंदा तो होते हैं, मगर ख्वाब नहीं देखते। यही वो कैफियत है जहाँ ताकत खुदा के बगैर इंसान को जिंदा लाश बना देती है। बैन अल-नहरीन में बड़ी बड़ी सल्तनतें उठीं। आशूर, बाबल, बादशाहों ने खुद को दुनिया का मालिक कहा, कौमों को अजाड़ा, शहर मिटा दिए, लोगों को जड़ों से उखाड़ दिया। इन्होंने समझा कि दहशत ही असल ताकत है, लेकिन दहशत की उम्र कम होती है। जितना ज़्यादा जुल्म बढ़ता है, इतना ही तख्त कमज़ोर होता है। मिस्र में फ़िरौन ने दरिया को काबू में रखा, गले को कंट्रोल किया, जिंदगी और मौत को अपने हाथ में समझा। फिर इसने वो जुमला कहा जिसने इसका अंजाम लिख दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। कुरान इस लम्हे को फैसला किन बताता है। इंजील गुरूर के अंजाम की याद दहानी कराती है। तौरात बताती है कि सरकशी अजाब को दावत देती है। तीनों किताबें एक ही बात कहती हैं, जो खुदा के मुकाबिल खड़ा होता है वो मिट जाता है। फ़िरौन की ताकत अपने उरूज पर थी, लेकिन बनी आदम के दिल में खौफ टूटने लगा था। ये टूटना शोर से नहीं होता, ये खामोशी से होता है। कुछ लोग हुक्म मानने से रुक गए, कुछ ने दिल में इनकार किया, कुछ ने खुदा की तरफ लूटना शुरू किया। यही वो लम्हा होता है जहाँ जुल्म घबरा जाता है, जालिम बादशाह मजीद सख्त हो जाता है, सज़ाएं बढ़ जाती हैं, कत्ल आम होता है। लेकिन अब हर जुल्म मजीद बेदारी पैदा करता है। चैन में जब हुक्मरान आसमानी हक खो बैठे तो सल्तनतें बदल गईं, शहर टूट गए, वादी सिंध की मुनज़्ज़म बस्तियों अचानक खामोश हो गईं। अफ्रीका की ताकतवर सल्तनतें वक्त के साथ मिट गईं। हर वो बादशाह जो खुद को खुदा समझ बैठा, वो तारीफ के सफ़ों में दफन हो गया। महल्लात खंडर बिन गए, मुजस्समे टूट गए, नाम मिट गए, लेकिन बनी आदम बाकी रहे। यही सबसे बड़ा सबक है। ताकत बग़ैर खुदा के आर्जी है, ईमान बग़ैर ताकत के दायमी है। जालिम बादशाह ये समझता रहा कि वो तारीफ लिख रहा है, असल में तारीफ इसे मिटा रही थी। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हर दूर की कहानी है। जब भी कोई ताकत खुदा को भला देती है, जब भी कोई हुक्मरान खुद को जवाबदेह नहीं समझता, जुल्म दोबारा जन्म लेता है और बनी आदम दोबारा आजमाए जाते हैं। ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं,
ये जगाने के लिए है, क्योंकि आप बनी आदम हैं। आपके आबाओ इजदाद ने ये सब देखा, सुहा और फिर खुदा की तरफ लौटे। ये चैनल उसी लिए है ताकि आपको याद दिलाया जाए। ये आपकी अपनी कहानी है, आपका अपना सफ़र है। अगर इस दास्तान ने आपके दिल में सवाल जगाया है, अगर आपने महसूस किया है कि ताकत और खुदा का ताल्लुक़ समझना ज़रूरी है, तो इस सफ़र में हमारे साथ रहें। इस चैनल को छोड़ें नहीं, क्योंकि ये कोई आम तारीफ़ नहीं, ये बनी आदम की याददाश्त है। हम आदम से आज तक का सफ़र समझ रहे हैं, ताकि हम वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं जो जालिम बादशाहों को जन्म देती हैं। आप तारीफ़ नहीं सुन रहे, आप खुद को पहचान रहे हैं। ये बनी आदम है, और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ।